We did around 3 examples, right? Yes. Just let me know the last example. G G of 100 was needed. Okay. Yes. Now, say if somebody is asking, you've been given f of 2x minus 5 divided by 3. This is problem 1 is equal to 5x plus 7, and he is asking find fx. I mean, instead of this, if he is asking f of x plus 1 is equal to 2x plus 1 and he is asking x, so I will definitely say put x is equal to x minus 1 and you get the answer. It's an easy content actually. I know if I replace x by x minus 1, I'll get 2 times x minus 1 plus 1 is my required fx. Sometimes it happens that we are not being able to catch this particular x which we replace and we get fx. So in that case, what you should do, just assume it to be m and you will get f of m is equal to, if I write 2x minus 5 by 3 is equal to m, then I will get x is equal to 3m plus 5 divided by 2. So your f of m becomes 5 times 3m plus 5 divided by 2 plus 7. You can calculate it. Now you are finding f of x, means f of x is coming out to be, don't compare this x with this x actually, right? f of x is coming out to be, calculate करके लिख देते हैं 15 by 2x, 25 by 2 plus 7, 25 by 2 plus 7, 39 plus 39 by 2 is your function. I mean, replacing this particular part smartly, no smartness is needed in this particular question, but in some questions replacing this smartly and getting the function is a different part. Like in ordered pair, some ordered pair is given like this: f of x minus y comma x plus 2y is equal to 3x plus y, and he is asking find f of x comma y. Then definitely you will assume x minus y is equal to m and x plus y is equal to 2y is equal to m. So you will get x is equal to m plus n by 2, multiplying it by 2 and subtracting, so I'll get y is equal to no, I did wrong actually. X is not this. इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा x is equal to क्या आएगा 2m plus m by 3, and directly अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो you'll get y is equal to m plus not m n minus m by 3. So this becomes, I mean, this part becomes f of m comma n is equal to 3 times the value of x, that is 2m plus n by 3 plus n minus m by 3. You can calculate right hand side, replace m by small x and n by small y. Is there anyone having doubt in this particular question? Because the question I am going to write will take minimum 5 minutes. Yeah, ये copy करना चाहिए, लिखना चाहिए. Problem number 1, number 2, and then the third question. Actually, see, I mean, अगर तुझे direct पता होता अभी कि यार तो x minus y को किससे और x plus 2y को किससे रिप्लेस करेगा, जैसे ये था, ये क्वेश्चन f of x plus 1 is equal to 2x minus 1 and he is asking f of x, तो तू इसको m ले लेता है एक बार, m is equal to x plus 1, तो x का वैल्यू आ गया m minus 1, राइट, इसको लिखते हैं इधर में, तो
तो x को ही अगर x माइनस 1 लिख देगा तो fx आ जाएगा ना, तो कर वही रहे, एंड में जाके इसको x और y से रिप्लेस कर दे। एनीबॉडी एल्स हैविंग डाउट ओवर हियर? दिस इज स्टूडियो 1 राइट। देखो ये सारे ग्रुप्स ने, सारे बैचेस ने जो ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में आई विल रिपीट, कुछ एक दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो पिछले वाले ही कॉमन ग्रुप्स बना के मुझे ऐड किया गया है। एक ग्रुप में S1 जरूर होना चाहिए, S1 लिखा होना चाहिए, बिकॉज टुडे यू विल गेट द असाइनमेंट। आपने जो ग्रुप बनाया उसमें कैलकुलस मैथमेटिक्स ग्रुप S1 अटैच होना जरूरी है। पता लगा S2 का होमवर्क तुम्हें प्रोसीड कर रहा हूँ, सेंसलेस, वो एक पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करने का जरूरत नहीं है ना। जिस बैच की जो जरूरत है वही होमवर्क देना चाहिए। तुम्हें जो आज होमवर्क मिलेगा वो बैच 2 को या बैच 3 को शायद आज से 3rd वीक में मिले या 3rd लेक्चर में मिले, रहेगा कॉमन, लेकिन सेम लेक्चर्स में नहीं मिलेगा। सो यू कॉपीड दिस ऑल ऑफ यू? Can I raise the problem 1? Sir, 1 minute. Just problem 1. Write down problem number 3. Time limit is 5 minutes. You have been given f of x comma y is equal to f of 2x plus 2y comma 2y minus 2x. For all x comma y belongs to R. He is asking if f of 2 raised to power x comma 0 is equal to f of x plus, f of 2 raised to power x plus k comma 0, find minimum value of k greater than 0. Please don't announce the answer. Done. Which Done. batch? Nasik. Okay. The Chembur done. Chembur also. Nasik. Nasik branch, what is your answer? 2. 2. Very good. Even Andheri branch is getting 2. Okay. Dadar branch, Chembur branch, what is your answer? 2. 2. Chembur is also getting 2. Let me check the question. F of 2x plus 2y comma 2y minus 2x. 2 raised to power x plus k. I am extremely sorry, all the 3 students are giving the wrong answer. 2 is not the correct answer. So 3. 3 is again wrong. One more student in APJC 1 giving the answer 6. If you are getting it, don't announce it. It's wrong. Wait, don't announce the answer please. I'll tell you, 1 rejected, 2 rejected, 3 rejected, 6 rejected. Are you getting different than these? Yes, sir. One is different. Okay, what is it? The 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And K can't be 0. So 7 different wrong answers are there. Waiting for the 8th one. यार आप लोग अपने ग्रुप का नाम जल्दी चेंज कर लो, क्योंकि लेक्चर का एंड जो होएगा ना 12:30 ना 12:30 में आपको इमीडिएटली आपका होमवर्क पोस्ट करूंगा। अगर आपके उधर में बैठने का जगह होएगा ना तो आप उधर ही बैठ के सॉल्व कर लो उसको। मतलब वो इसीलिए है कि आप अपने उधर ही बैठ के सॉल्व कर लो।
लेकिन फिर भी अगर जगह नहीं है तो आप घर जाके कर सकते हैं. टाइम लिमिट मैं लिख दूंगा उसमें. वन लास्ट. Sir, is it log 6 to the base 2? करेक्ट आना दिख रहा है. करेक्ट आना अनाउंस करना जरूरी था. मैं बोल रहा हूँ कि दिख रहा है. करेक्ट. Sir, यस प्लीज. is it log 6 to the base 2? यस, ये रॉन्ग आंसर बहुत लोग का आया प्रीवियस बैच में, और मैं कैलकुलेशन पकड़ नहीं पा रहा हूँ कि ये किस तरह की कैलकुलेशन से आंसर आ रहा है. Look, we have done definition part, right? And we are into the second content. Value of a function means fx दिया हुआ है, x का वैल्यू 2 डालो, क्या आंसर आता है ये बताना है. अभी जेई एडवांस लेवल पर 2, 3, 4, 5 तो नहीं डालोगे, कुछ तो अच्छा करोगे. वही तो कर रहे हैं. एक पैटर्न ढूंढा है. पैटर्न क्या बोलता है कि यहाँ जब x, y आता है तो ध्यान दे दो सब लोग. हाँ, आंसर बोल चल. 11 is the wrong answer. One more wrong answer. 0 तो किसी को नहीं आया है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 11. 7 wrong answers and 1 correct answer is also there. The pattern is important. See, यहाँ जब x और y है तो इधर को क्या आता है? फर्स्ट एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो तो एलिमेंट 1 आता है. सेकंड एलिमेंट को 2 से पहले मल्टीप्लाई करो. देखो ये लॉ है कि 2y माइनस 2x आ रहा है. सेकंड एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ये लॉ है. अब इस लॉ को आगे प्रोसीड करते करते मुझे फॉर्मेट तैयार करना है. ये वाला, इस फॉर्मेट पे पहुंचना है. मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन में मैं एक क्वेश्चन देने की जगह में 6-7 क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ और उसको मैंने एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर दिया है. राइट. पैटर्न क्या बन रहा है इसको हम लोग लिखते हैं अभी इधर. f of x, y इज इक्वल टू, नहीं इनफैक्ट इसके आगे इधर ही चलते हैं. इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो तो नेक्स्ट एलिमेंट आता है. तो इसको लिखते हैं इधर 4x प्लस 4y प्लस 4y माइनस 4x. ये तुम्हारा 4x कैंसिल हो गया तो आ गया 8y. f ऑफ 8y कॉमा सेकंड एलिमेंट कैसे आता है भाई? यहाँ से यहाँ सेकंड एलिमेंट कैसे आता है? सेकंड एलिमेंट को यहाँ वाले सेकंड एलिमेंट को इसको 2 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो. इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना बनेगा? 4y माइनस 4x. इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 4x प्लस 4y और इसको सब्ट्रैक्ट करो तो तुम्हारा आंसर जो बन रहा है ये बन रहा है -8x. ये बन गया -8x. तो तुम्हारा लॉ चेंज हो गया. अभी एक नया क्वेश्चन आ गया तुम्हारे लिए और वो क्वेश्चन बन गया f of x, y is actually equal to not this. ये तो है ही लेकिन इससे बेटर है और वो बेटर है 8y माइनस 8x. अब मुझे इसको आगे लेके जाना है और तुम्हें हर स्टेप में इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें यहाँ पे ये तो 0 आ ही जाएगा. यहाँ जो भी आएगा x y उसको 0 डाल दूंगा तो ये तो 0 बन ही जाएगा. लेकिन तुम्हें यहाँ 2 raised to power x विद पॉजिटिव साइन क्रिएट करना है जो कि यहाँ पे तो कम से कम नहीं बन रहा है. अगर मैं चाहूँ इसको x को 0 डाल दूँ और y को कुछ डाल दूँ तो मुझे ये यहाँ से इस पैटर्न में जाने में कुछ स्टेप मिल नहीं रहा है. तो मुझे आगे और एक स्टेप और लिखना है. क्या स्टेप लिखना है जरा ध्यान दे दो. यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच रहे हैं? इसको 8 से मल्टीप्लाई करो और जो भी कुछ आता है उसको फर्स्ट प्लेस पर लिख दो. ऐसा ही आ रहा है ना? यानी सेकंड एलिमेंट को 8 से मल्टीप्लाई करके जो कुछ आता है वो फर्स्ट प्लेस पे आता है. तो ये फर्स्ट प्लेस पे कौन आ गया? सेकंड एलिमेंट 8 से मल्टीप्लाई हुआ और 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसको लिखा तो कितना आ गया भाई? -64x. राइट. अच्छा, इसका सेकंड एलिमेंट कैसे आता है? इसका फर्स्ट एलिमेंट -8 से मल्टीप्लाई होके सेकंड प्लेस पर आता है. नहीं, गलत कर रहे हैं. यहाँ से यहाँ पहुंचे ना, यहाँ से यहाँ पहुंचे तो ये कब आ रहा है? ये 8y आ रहा है. 8y आ रहा है जब ये 8 से मल्टीप्लाई होके और यहाँ पे ये 8 से मल्टीप्लाई होके और फर्स्ट प्लेस पर आता है. यानी ये -8x आ रहा है. ये कितना आएगा? जस्ट टेल मी. -64y. That's right. Is there anyone having doubt regarding this particular step? Any branch? Any student over here? Understood? Right. Now I have got one more
law, that is f of x comma y is this. Yes, please. Sir, how can we do like this? मतलब ऐसा करके कैसे मतलब equal आएगा function तो वो नहीं समझा. मतलब पैटर्न से हमने ऐसे दूसरा फंक्शन लिखा जो उससे इक्वल है, हम कैसे कह सकते कि वो पैटर्न से वो इक्वल होगा सर? नहीं, मैं तो क्या कर रहा हूँ, सीधा सा अगर कोई बोलेगा कि f of 2,3 क्या आएगा, तो x को 2 और y को 3 डाल दूंगा, यहाँ पे कुछ आंसर मेरा आ जाएगा, राइट? मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ से यहाँ पैटर्न क्या है, तो यहाँ से यहाँ पैटर्न जो है वो मैंने पहले समझाया कि इस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया तो फर्स्ट एलिमेंट और सब्ट्रैक्ट किया तो सेकंड एलिमेंट, सब्ट्रैक्शन उल्टा है जान लो, ये पैटर्न, राइट? अब जब मैंने इस पैटर्न को यूटिलाइज किया तो मेरे पास ये एलिमेंट आ गया, इसका मतलब ये और ये इक्वल है, राइट? अब इसका पैटर्न पढ़ो, ये पैटर्न क्या है? क्यों? अरे यार सर वो f of 8y minus 8x वो पैटर्न कैसे आएगा? तो a और c इक्वल नहीं होएगा क्या? Oh. You want me to say f of xy is not equal to this one? Sir, but how did that come? Could you explain that, please? मतलब sir, yes sir, that's what I'm trying to say because we have just played that pattern. Sir, can you prove it that it should be like this? The same pattern. I'm proving only. I'm saying f of x comma y. Say if somebody is asking what is f of 1 comma 3, how will you find f of 1 comma 3? यहाँ f of 1 comma 3 यहाँ से निकालोगे ना, तो यहाँ क्या करोगे बताओ? इसको 2 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो जो आएगा उसको यहाँ रख दोगे। इसको ये लाने के लिए क्या करोगे? ये लाने के लिए क्या करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब 6 माइनस 2 करोगे तो जो एलिमेंट आएगा वो यहाँ पे आएगा। दैट आई हैव रिटन हियर। ये मैंने सॉल्व भी किया यहाँ पे। ये एलिमेंट 1, ये फर्स्ट प्लेस आ गया, P1 प्लेस 1, दिस इज प्लेस 2, ये एलिमेंट आ गया मुझे। इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया कि यार अब मेरे पास ये मिल रहा है। अब इसका आगे फॉर्मेट क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। इससे ये कैसे आएगा, तो जस्ट देखो ना यार कि इसमें जब यहाँ x और y होता है तो यहाँ क्या आता है कि यार ये सेकंड एलिमेंट को 8 से मल्टीप्लाई करो। Okay sir, तो जो आंसर, हाँ अंडरस्टूड, मैं इसको वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो एलिमेंट आता है वो फर्स्ट प्लेस पर आता है, राइट? इसका जो सेकंड एलिमेंट है कौन है? इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो कौन है? माइनस 8x। इसको 8 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो फर्स्ट प्लेस पर आएगा। आर यू क्लियर? सिमिलरली इसको 8 से मल्टीप्लाई करके माइनस 8 टाइम्स आएगा। जो सेकंड एलिमेंट इसका कैसे आ रहा है बताओ? आर यू क्लियर विद दिस वन? इज देयर एनीवन हैविंग डाउट नाउ? Yes sir. No, again you are having the law. Again you are having the law. What is this? What will you write? Acha, first of all tell me, can I stop it over here? I can't. No. Because the negative sign is there. I have to remove this negative sign also. So what do I get? F of x comma y is equal to f of first element को minus 64 से multiply करके लिख दो. So what do you get? 2 raised to 12x. 264 कितना होगा? 2 raised to power 6. 2 raised to power 6. तो ये हो जाएगा 2 raised to power 12. Are you clear? सेकंड एलिमेंट कितना हो गया? अगेन 2 raised to power 12y. ध्यान दे दो इस जगह में, राइट? क्या करना है इसके बाद? You have to put y is equal to 0. That's it. And what is x? 2 raised to power x. F of 2 raised to power x, comma 0 is coming out to be f of 2 raised to power 12. x को मैं 2 raised to power x लिख रहा हूँ ना, एक बार तो लिखने दे यार, comma 0. So this will become f of x plus 12 comma 0. 2 raised to power x. मतलब वही 2 raised to power x plus 12 comma 0. अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया, पता है ये फंक्शन पीरियोडिक बन गया अभी। सोचो इसके बाद वाला स्टेप क्या आएगा, मतलब अगर मैं इसके बाद एक और लिखना चाहूँ, f of 2 raised to power x comma 0 जब आता है तो आंसर आता है 2 raised to power x plus 12 comma 0।
तो f of x plus 12, 0 अगर मुझे आगे लिखना हो, ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया. वैल्यू ऑफ k इज कमिंग आउट टू बी व्हाट 12, राइट. लेकिन अगर मुझे एक स्टेप और लिखना हो तो इसके बाद वाला स्टेप क्या लिखा जाएगा बताओ. ये रहा आ गया f of x plus 24 2 raised to power x plus 24, 0 and so on. Periodic function with period is equal to 12. This is one extra part extracted from this particular question. 12 आ गया ना period? अरे हेलो, 12 के बाद रिपीट हो रहा है ग्राफ. 2 raised to power 12 के बाद रिपीट नहीं हो रहा है. x को x plus 12 लिख रहा है, फिर x plus 24 लिख रहा है. मैं तो बोलूंगा कि ये क्वेश्चन कॉपी करते हैं टाइम जिधर अटक रहे हो भले देख के लिख लो, लेकिन एक बार फिर ट्राई कर लेना, फायदा होएगा. देखो कभी कभी वैल्यू ऑफ फंक्शंस निकालने में हम लोग को इस तरह के प्रोसेस से पास होना होता है. हम जब वैल्यू ऑफ फंक्शन का ऐसे आर्टिकल हेडलाइन डालते हैं ना, तो जिन स्टूडेंट का थोड़ा वैल्यू ऑफ फंक्शन पढ़ा है ना, उन लोग को लगता है कि शायद fx is equal to sin x plus cos 2x plus cos 3x लिख के और x का वैल्यू 18 डिग्रीज डाल देंगे तो एक टफ क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि 18 डिग्रीज का वैल्यू जिसको पता होएगा वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होएगा. ऐसा एक्चुअली है नहीं. वैल्यू ऑफ फंक्शन में वो बड़े गंदे गंदे से क्वेश्चन भी कभी कभी, इसको मैं इससे ज़्यादा ऊपर गंदा क्वेश्चन मैं मानता नहीं हूँ, राइट. लेकिन ऐसे डर्टी क्वेश्चंस वो वैल्यू ऑफ फंक्शंस में पूछता है. इनफैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शंस में कभी कभी आपको इस तरह के इक्वेशंस भी देता है. कैन आई इरेज दिस? No sir, wait. हाँ, वो वैल्यूज तो डिराइव करना आना चाहिए. वैल्यू याद तो कितना रखेगा. Sir, 1 minute. अरे नहीं नो सर. ठीक है ना. Sir, तो तेरा शीट करना एक्स्ट्रा बैठे जो तेरे से नहीं वो क्वेश्चन जगह नहीं है. Yes, please. If you want to ask any question, please go ahead. Yes sir. सर इससे हमें पता कैसे चलता है कि k का मिनिमम वैल्यू 12 होएगा? हाँ, ये इम्पोर्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है. k का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन मैंने k ग्रेटर देन 0 लिखा है. पहली बात तो ये, राइट. दूसरा, मेरा ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न में मुझे हर स्टेप में ये वाला स्टेप देखते हुए चले जाना है. मुझे क्या देखना है, तुमने जितना स्टेप्स लिखा, मैं ऐसे बोलूँ कि ये स्टेप 2 हो गया, स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 3 हो गया, राइट. हर एक स्टेप में मुझे ये जो पहला टर्म है ना, पहला टर्म उसको 2 raised to power x की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, राइट. और दूसरे वाले टर्म को 0 बनाना है. इफ आई एम एबल टू डू सो, k का वैल्यू इससे कम भी आ सकता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट ऐसा कभी हो नहीं रहा है. यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे y पहले आ रहा है, नहीं क्रिएट हो पा रहा. यहाँ पे x आ गया लेकिन नेगेटिव साइन क्रिएट हो रहा है, नहीं क्रिएट हो पा रहा. यहाँ पे x आया और पॉजिटिव भी आया, क्रिएट होने के चांस बनते हैं. मैंने देखा x को 2 raised to power x डाल करके और y को 0, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया. दैट्स इट. इससे पहले ये कभी नहीं आ रहा है. हाँ सर समझा सर. जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बीच में किसी जगह समझ में आ जाए ना, तो रोक दिया करो प्लीज, ठीक है. Sir, हाँ बोलो. sir, won't it be a periodic function with its common ratio as 2? पीरियोडिक फंक्शन का कोई कॉमन रेशियो नहीं होता है. पहली बात तो ये, उसका पीरियड ही होता है. Sir, like पहले में 12 होगा, then it will become 24, then it will become 48 ना? नहीं, 24 plus 12 36. Sir, नहीं, but then your function is as 2 raised to 24, तो 2 raised to 24 से ही multiply करेंगे ना वापस. So it will become 2 raised to 48. हाँ ठीक है. ओके डन. 48 आएगा बट पीरियड विल बी 12. 12 बीच में मिस करेगा उसमें. द पीरियड विल बी 12 हियर. यार वो डबल सारे सामने का नहीं समझा सर. कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? डबल
डबल्स के आगे सामने का नहीं बोल सकते 2x के सामने I'm asking this question. x को 2 raised to power x से रिप्लेस किया है, x को 2 raised to power x से रिप्लेस किया है और y को 0 से। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? क्योंकि मुझे निकालना है f of 2 raised to power x, 0। तो डेफिनेटली x को 2 raised to power x से मेरे को रिप्लेस करना ही है और मुझे उसका फायदा भी है एक्चुअली। x को 2 raised to power x से रिप्लेस करते ही मुझे ये 2 का पावर क्लब करने को मिल रहा है। What I required I have written actually. It's fine. Don't bother much. Value of functions में sometimes he asks this kind of problems also. Write down. A function satisfying f of 3 is equal to 1. I don't know the number. F of 3 is equal to 1. F of 3x is equal to x times, no, x plus f of 3x minus 3 for all x. Find the value of f of 300. Sometimes when he's asking value of a function, he give you such equations to manage the equation and to find the value. That's very good. Very good. Who got it? Chembur branch, who got it? Sir 5050 5050 is the correct answer. चेंबूर से ये आंसर आया है। किसको आया है? I want to know the name. अकोला से सेकंड प्लेस पे है, don't cheat. अकोला से नंबर है, पहले चेंबूर से आंसर आया है. सर प्रणय All right. 5050. पैटर्न पकड़ में आया ना? f of 3x minus f of 3x minus 3. 3x minus करने दो सारे लोग, ट्राई करो सब लोग। ये लोग को पैटर्न नहीं मिलेगा ना, वो लंबे जाएंगे। आप लोग को मतलब बहुत सॉल्व नहीं करना है, एक दो स्टेप्स में पकड़ लेना है कि क्या इस क्वेश्चन में करना है, तो फिर जल्दी जल्दी जाएगा। हमने पे गॉट इट 5050 यार। तुम लोग को x to the power n का इंटीग्रल तो आता है ना 0 to 1 में? सब लोग को आता है ना? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मतलब लेक्चर के ड्यूरेशन में तुम चाहो तो कर सकते हो। You have been given f of x is equal to 5x plus 3 times 0 to 1 f of y dy. Find f of 7. एक्स्ट्रा क्वेश्चन मीन्स किसी को भी अगर जो एग्जाम्पल जल्दी से अगर बन जा रहा है तो उसको फ्री टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए। इंटीग्रल इजी है, मतलब फिजिक्स में जो काम आता है इंटीग्रल वो उससे ज़्यादा लेवल नहीं है इंटीग्रल का। मतलब इसमें f of 3 दिया हुआ है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा हिंट हो गया। आप इसमें x का वैल्यू 2 डालो एक बार, तो आपको मिलेगा f of 6 is equal to 2 plus, what do you get here? f of 3, that is 1. 2 plus 1, right? Now put x equal to 3, what do you get? f of here 9. What is f of 9? f of 9 is equal to 3 plus 2 plus 1 no, I'll write properly. X equal to 2 here. What do you get? f of 6, which is giving you 3 plus 2 plus 1.
I guess we have got a pattern actually. Yes, sir. When you are writing f of 9, you are getting this. Now you are putting x equal to 3 जैसे डालते हैं तो 3 2 1 आता है. x equal to 4 पे एक बार डाल लो, क्या आ जाएगा? f of 4 डालोगे तो कितना आएगा? f of 12 आएगा ना? f of 12 कितना आ रहा है? 4 plus f of 9, and f of 9 you have already got it. 4 plus 3 plus 2 plus 1. I guess x को कितना डालने से 300 आएगा बताओ? 100 डालने से 300 आने जा रहा है. f of 300 चाहिए ना मुझे. So f of 300 is coming out to be 100 plus 99 up to, which is coming out to be 5050. देखो value of a function में once again I will tell you the same thing. You have to identify the pattern and simplify that pattern actually, right? ये क्वेश्चन ऐसे अभी करने के लिए है ही नहीं. टाइम खत्म. मुझे क्या पता क्या है? सब कुछ पूछोगे फिर सॉल्व क्या करोगे? Can I erase this? Final answer What is your answer? 42.5. What is f of x? F of x will become like I went by some direct. No, that is wrong. So f of l 5x minus 15 by 4 है. I'm making it 5x plus 15 by 2. मैं करूँगा लेक्चर के एंड में ये क्वेश्चन ही करूँगा क्योंकि ये वैल्यू ऑफ फंक्शन पे ही डिपेंडेंट है और एक इजी क्वेश्चन है. अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है. So now I can erase this, I guess. Okay? किसी को ऑब्जेक्शन है तो रोक देना भाई. एक और क्वेश्चन लिखो. देखो ना, जब एक चीज पकड़ में आ जाए कि हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन पे एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो स्पीड का थोड़ा ध्यान रखो. क्वेश्चन ये वाला लिखो. Function is defined for positive integers satisfying f of 1 is equal to 2005 and f of 1 plus f of 2 plus f of 3 up to f of n. Obviously positive integer means n को एक integer ही बनना है is equal to n square f of n. For all n greater than 1. Find f of 2004. Sir, one by component. किसका है ये? अकोला. अकोला ने आंसर दिया. 1 upon अकोला ब्रांच. What is your answer? आराम से. एक बार पोज लो. Now tell me your answer. 1 upon 1002. क्या है? बहुत अच्छा कर दिया. Prove that. उसने आंसर बोल दिया ना. f of 2004 is equal to 1 upon 1002. बहुत छोटा मिस्टेक है. कुछ लोगों को जो आंसर गंदा सा आ रहा है ना वो 2004 2005 ऐसा कुछ वो एक टर्म की वजह से आ रहा है. एक गंदा टर्म तुम लोगों ने लिखा है इस वजह से आ रहा है. हाँ. So is it 1 upon 1002? Yes, it's right. यार n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 दिया हुआ तो मुझे लगता है 2 डालना ही चाहिए एक बार.
है ना, 1 तो डाल नहीं सकते ना क्योंकि f(1) तो दिया हुआ ही है, तो 2 डाल दो ना, मजा आएगा। 2 डाला इधर तो कितना आ गया 4 टाइम्स f(2), ये 4 टाइम्स f(2) इज इक्वल टू, जब 2 डालेंगे तो ये सीरीज यहाँ तक खत्म होगी ना, दैट इज f(1) प्लस f(2), ये f(2) लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, 3 टाइम्स f(2) इज इक्वल टू f(1), ये 3 इधर से गैप करो, इधर लिख के जाओ, राइट। इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे, मतलब चाहूँ तो नेक्स्ट में लिखूंगा, ज़्यादा मजा आएगा। अभी n का वैल्यू 2 डाला तो f(2) f(1) के टर्म्स में आ गया, और मुझे एक आइडिया तो है कि यार f(1) दिया हुआ है और f(2) 1004 पूछ रहा है, तो मैं अगर f(3) f(4) इनकी वैल्यूज f(1) के टर्म्स में निकालूं तो कोई पैटर्न मुझे मिलेगा। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला था, इनफैक्ट पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने बोला पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो वैल्यू ऑफ द फंक्शंस में। तो n का वैल्यू एक बार 3 डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। 9 टाइम्स f(3) इक्वल टू f(1) प्लस f(2) प्लस f(3), f(1) को f(1) रहने दो, f(2) हो गया f(1/3), और ये f(3) इधर आया तो हो गया 8 टाइम्स f(3), हो गया ना। तो ये हो जाएगा कितना, f(3) हो जाएगा कितना, f(1/6). अब मैं लिख सकता हूँ, ये मेरा हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ f(1/1 + 2), f(3) मेरे पास कितना आ गया, f(1/1 + 2 + 3), राइट। I guess the question is done. What is f(2004)? How did you think of that? Why didn't you think? Actually, see, मेरा थॉट क्या है, मैं भी मतलब 1 मिनट तक बैठा सोच रहा हूँ यार करना क्या है, फिर मुझे लग रहा है यार f(2004) का जो भी एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड में आएगा मुझे उसमें f(1) लाना है। वेट, इसका मतलब मुझे f(2004) इन टर्म्स ऑफ f(1) चाहिए और n > 1 दिया हुआ है, तो n को 2 या 2 से ज्यादा डालना है। whenever I will start writing 2, I will एक बार 2 डालते ही मुझे पता लगेगा कि इसमें n का वैल्यू 3 4 डाल करके क्या पैटर्न मिल रहा है। सी, इन सारे क्वेश्चन का अंडरलाइन पार्ट क्या है जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्राई टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, दैट्स इट। अरे क्वेश्चन में वही कर रहे हैं, राइट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टुडे, राइट। यहाँ भी मुझे पैटर्न ही आइडेंटिफाई करना था एक्चुअली। ओके, so what are you getting it? What are you getting? So why didn't you think? Why did you think 1 + 10, 1 + 2 + 3 into like 1 into 3 or 2 into 3? Basically, more than an answer. No. I'm not writing it. I will write it 6 only. Then I'll write next वाला term, right? तो तुमने जो प्रोग्रेशन में तुमने किया क्या है exactly? जो तुम्हारी टर्म्स आएंगी, पहली टर्म डिनोमिनेटर में f(1) के नीचे डिनोमिनेटर में पहली टर्म क्या आ रही है बताओ? 1 नहीं आ रही है, 3 आ रही है। 1 तो 1 है ही, 1 तो वो शुरू में ही आ रही है, राइट। मतलब वो दिया हुआ है f(2001) 5 / 1 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तुम्हारा पहला टर्म आ रहा है 3, उसके बाद कौन आ रहा है 6, उसके बाद कौन आ रहा है 10, उसके बाद कौन आएगा। अब ये सीरीज बन गया ना, तो इसको लिखेगा कैसे? अभी ये 1 + 2 बन रहा है, ये 1 + 2 + 3 बन रहा है, ये 1 + 2 + 3 + 4। हाउ डू यू राइट इट इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस? So you have to find out a certain number. डेफिनेटली। तो 3 और 6 के साथ किसी को लगता है 2⁻1 + 1 2⁻2 + 2 ये लगता है एक टर्म निकालना पड़ेगा, इसीलिए उसका गलत हुआ कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स में निकाल के सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि ये इसी पैटर्न में जाएगा। I got it as 6. So I took it as 2 into 3. हाँ, तो रॉन्ग चला गया ना इसी चक्कर में। -1 बहुत डार्क मिलता है इधर। राइट, सो जस्ट टेल मी व्हाट इज f(2004)? What will you write? f(1) divided by कितना आ जाएगा जरा बता दो। n and 1/. 2005 4 तक जाएगा ना ये? Yes, sir. 1 + 2 up to what? 2004। तो डिनोमिनेटर कितना आ गया? न्यूमरेटर लिख दो पहले तो 2005 divided by 2005, नो मतलब वही 2005 divided by 2। This is over 1/100। वैल्यू ऑफ फंक्शंस के जो क्वेश्चन अब मिलेंगे वो तुम्हें होमवर्क में मिलेंगे या टेस्ट पेपर में मिलेंगे। तो अगर ऐसा कोई पूछे कि प्रूव दैट f नहीं, फिर इंडक्शन यूज करना पड़ेगा, फिर नहीं करते। ये तो आइडेंटिफाई करने के लिए
मतलब एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर -25/2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? -25/2 उसमें डाल के देखना क्या आ रहा है। किसी को 125/4 आना है। चलो ये Sir, एक्स्ट्रा क्वेश्चन alternate method for this question. इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सर रुको अच्छा, सारे लोग को ट्राई करने का एक चांस तो देना ही चाहिए। मुझे लग रहा है सारे लोग इन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे थे, इसको किसी ने सोचा नहीं है। fx is equal to this is given to you and he is asking f of 7 how to find it, giving you 2 minutes। हाँ, किसी को कोई डाउट पूछना था क्या? आवाज आ रही है। no sir this is Thane branch alternate method। In the previous question yes sir n square f of n दिया हुआ है तो sir I am saying वेट बोल मत अभी। n square f of n दिया हुआ है। क्या कर रहा है ऑल्टरनेट मेथड में? sir the question was like f of 1 plus f of 2 plus f of 3 up till f of n is equals to n square Okay, into I f of n understood. He is So- doing well. I guess you are finding f of 1 plus f of 2 up to f of n minus 1 is equal to something and subtracting these two. Is it Yes. something like this? yes sir yes sir I think you will better कर रहा है। sir it becomes a telescopic हाँ, वो समझ गया। question Good. Thane branch student have done it in a better way actually. He wrote 1 plus 2 plus 3 up to f of n minus 1 is equal to n minus 1 square f of n minus 1 and subtracting it. He get a telescope. That's nice यार, मजा आ गया। Good. ठीक है। किसी ने आपने भी ट्राई किया था क्या? ठीक है। Okay, try for this question. प्रीवियस क्वेश्चन जितने लोगों ने सॉल्व किया है उसमें आप लोग ये एक्स्ट्रा मेथड करके लिख लीजिए, रिप्लेस n by n minus 1 एंड सबट्रैक्ट। बस उसके बाद में घर में सॉल्व कर लीजिएगा। नीचे भी हो जाएगा, थोड़ी ऊपर। ये पाँव में ऊपर पाँव से उठा रहा हूँ, मतलब मेरे पाँव में ही आ रहा है इसलिए मैं उठा के तेरे को दे रहा हूँ और तो उसको पाँव से उठा ले। हाथ रुक गया। तो यू आर सिटिंग हियर। ये तो कॉमन है ना। नियर टू द आंसर बट रॉन्ग। अच्छा यार एक बात बताओ, टाइम नहीं है यार, इसको डिस्कस कर लेते हैं प्लीज। एक बात बताओ, एक इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क में मैं तुम लोग को दे दूंगा, आराम से सॉल्व करना इसी पैटर्न पे जिसमें वैल्यू ऑफ फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो एक चीज बताओ, यहाँ fx is equal to 5x plus 3 times 0 to 1 f of y dy, इसका मीनिंग समझ लो। f of y dy में यहाँ जो भी फंक्शन ऑफ y आएगा वो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होएगा। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होके एक बॉक्स बनेगा जिसमें अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू विल बी योर आंसर। कैन यू टेल मी इसका जो आंसर आएगा वो y के टर्म्स में आएगा? नहीं आएगा। x की टर्म्स में आएगा? कांस्टेंट आएगा। ये बात अलग है, वो कांस्टेंट मुझे पता नहीं है बट आएगा कांस्टेंट। तो एक काम करता हूँ, मैं इस कांस्टेंट को k अज्यूम कर लेता हूँ। सो व्हाट डू आई गेट? fx is equal to 5x plus 3k, राइट? अब मेरे को fx पता है, ये बात अलग है कि k पता नहीं है, तो k निकाल लेते हैं। दिक्कत क्या है? What is k? Tell me, what is k? k क्या अज्यूम किया है? 0 to 1 f of y dy तो अज्यूम किया है। Now what is f of y? 0 to 1, what is f of y? fx पता है ना? What is f of y? 5y plus 3k dy. I'll solve it here. I'm getting an equation in terms of k. देखो equation in terms of k. What do I get? k is equal to 0 to 1. No, why should I write 0 to 1? Integrate कर दें। 5, अरे हद हो गई। सेम के क्या होगा? बेसिक समझो ना,
ये तूने क्या अज्यूम किया? हाँ तो तेरा fx क्या बन गया? 5x plus 3k बन गया। 5x plus 3k बन गया। अब अगर fx ये तो y क्या आएगा? y अच्छा x की जगह y लिख दे, तो ये कैसे चेंज हो जाएगा? राइट, 5y square by 2 इंटीग्रेट किया प्लस 3ky 0 to 1, so k is equal to 5 by 2। मेरे को आंसर वेरीफाई करना है एक्चुअली, उधर से भी कोई आंसर आया, उधर से भी कुछ आंसर आया, सो 0 का तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 3k, so you are getting k is equal to 2k is equal to minus 5 by 2 and k is equal to minus 5 by 4, so fx becomes 5x minus 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते ना k का वैल्यू, minus 15 by 4, ये आ रहा था तेरा, बस फिर ठीक है। और तुम्हें निकालना है कितना? f of 7 आ गया तुम्हारे पास 35 minus 15 by 4। बताओ ना यार, पहला आंसर कितना है? 125 by 4। तो जो नेगेटिव आंसर किसी को आ रहा था वो तो रॉन्ग है। अच्छा, किसी को डाउट है कि समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ, क्योंकि मैं इसमें इससे मतलब अपर लेवल वाला एक क्वेश्चन तुम लोग को देने जा रहा हूँ होमवर्क में, नॉट हियर। इसमें हम लोग जब अगर f of y को अगर हम लोग को 5x plus 3 इंटीग्रल f of y dy फिर इंटीग्रल एक मिनट प्लीज, इधर से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको पहले वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ बोलो। dy करते हैं, उसके बाद जब इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग वो राइट वाले टर्म को जब दूसरे पर इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, तो उससे मतलब जो इसने बोला था वो आंसर आता है 42.5 आता है। नहीं, that was wrong. उसमें रॉन्ग क्या हुआ? नहीं, तुम क्या कर रहे हो मुझे ये बताओ, 0 to 1 f of y dy को इग्नोर ही कर रहे हो क्या? नहीं, क्या कैसे इंटीग्रेट कर रहे हो? पहले f of y को जैसे आपने k माना, बस k नहीं माना, उसको 5y plus 3 इंटीग्रल 0 to 1 f of y dy whole multiplied by dy into from dy होल मल्टीप्लाइड बाय dy, दिस होल, no ये dy है क्या? dy तो एक सिंबल है, हाँ। और वो तभी रख सकते हैं जब कोई इंटीग्रेशन लिखा हो उसके अंदर। आपने इसे k के टर्म्स में ले गया ना। नहीं, मैंने इसको k के टर्म्स में नहीं लिया, तुमने बताया कि ये कांस्टेंट आएगा, आई वेरीफाइड इट कि कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा। मैंने बोला यार अगर कोई f of y पता हो, कुछ भी हो, आई डोंट नो, वो यहाँ पे रखेंगे और यहाँ dy लिखा है तो इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को क्या अज्यूम कर लो, क्या अज्यूम कर लो, बस वो क्या अज्यूम मैंने कर लिया इधर। उस k की वैल्यू अगर मुझे मिल जाएगी तो फंक्शन मिल जाएगा, वो मैंने निकाला इधर से। dy से मल्टी एक बार नहीं, एक चीज और ध्यान दे दो, मैं एक लैंग्वेज पार्ट तुम्हारा करेक्ट कर रहा हूँ। इन मैथमेटिक्स, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, इन any subject, multiplying by something by dx dy something, it's not an appropriate language. You cannot multiply something by dx or dy until and unless you are putting integral sign, you have to put it dx, otherwise not. हाँ, वो अलग चीज है, तुम लोग ऐसे लिख के और यहाँ पे कि ये dx लिख देते हो, that is a symbol कि एक स्ट्रिप तुमने लिया है। इस पे बहस नहीं करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक कांस्टेंट आएगा। So if the function is discontinuous, then you can't say it'll be a constant term. The integral. Given fx is continuous. No, so but like I'm just suggesting a case, not for everyone. डिसकंटिन्यूअस होएगा अभी, नहीं बहुत सारी होगा मैथ्स ना। बची पड़ी है, वहाँ पे फिर सिखाएंगे इसमें क्या करना है। किसी को डाउट है इसमें? Can I raise this? I'm giving you a question for homework. जल्दी करो यार, जल्दी प्लीज। अच्छा, होमवर्क में लिख रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन जिन लोगों ने कॉपी नहीं किया है वो कॉपी करो आराम से। क्वेश्चन डाउट है, पूछो क्या डाउट है? बिल्कुल, आपने जो किया है वो क्या सर, इंटीग्रल ऑफ f by dy from 0 to 1 वो कौन, वो ठीक है सर, समझा लोगों अच्छा, अरे ऐसा बहुत बार होता है, इट्स फाइन। हाँ भाई, गिवन f of x is equal to x plus 0 to 1 xy square plus x square y into f of y dy. Find fx.
देखो एक क्वेश्चन का थॉट सबको क्लियर है. एक चीज और समझ लो, in any integral if it is written x y dy, it means you have to write it x into y dy. You cannot integrate x in terms of y, right? यहाँ पे ऐसा ही कुछ करोगे. अब ये क्वेश्चन क्या है, तुम लोग इधर कर ही लोगे, मतलब अगर टाइम दूंगा तो. इट्स बेटर घर में टाइम दो. Can't you do that only if x is a constant? नो x इज x वेरिएबल है, fx से तो निकालना है. पर वहाँ पे नो y dy का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू y यू हैव टू इंटीग्रेट. इंटीग्रेशन के अंदर y ही वेरिएबल है सिर्फ. अच्छा ठीक. dy अगर कहीं लिखा है तो y ही वेरिएबल होगा. अगर मानो कहीं ऐसा, तुम सरफेस इंटीग्रल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो मुझे पता नहीं, अगर x स्क्वायर y dx dy ऐसा कहीं लिखा हुआ है, तब उस कंडीशन में x और y दोनों वेरिएबल्स हैं. वो इंटीग्रल करने का तरीका डिफरेंट हुआ. अभी तो हम लोग फंक्शन में ही चल रहे हैं. X and y but it's only dy. यस, सिर्फ dy रहेगा तो x को बाहर निकाल देना चाहिए. जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क. गिव 10 मिनट्स, 15 मिनट्स भी मुझे चलेगा. घर में इतना टाइम दो इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन फाइनल आंसर मुझे बताओ. हाँ, फाइंड fx. Can I erase this now? ठीक है जल्दी करना यार. हाँ देखा यार, लिखना जल्दी. सर इसका आंसर बता दो ना, किसका? मतलब चेक करने के लिए. इसका ये क्वेश्चन F और हाँ इसका आंसर अभी तेरा जो भी आया रॉन्ग है. चल बोल के दिखा. नहीं मेरा कुछ नहीं है अभी. अच्छा, घर में चेक करने के लिए. नहीं यार, वो परसों के लिए छोड़ दो यार, मजा नहीं रहेगा, मजा नहीं आएगा. मैं अकोला ग्रुप पे डाल दूंगा, चलेगा. सर नासिक है सर, नासिक. नासिक स्टूडेंट क्यों मांग रहे हो यार, मजा नहीं आएगा. अपना आंसर निकालो ना, फिर सारे स्टूडेंट्स मिलके वेरीफाई कर लो कितने डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं. वैसे मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, डिफरेंट आंसर जैसा कुछ नहीं होएगा. ठीक है सर. नेहरू ब्रांच रेड टी शर्ट. कितना दिन लगाएगा इसको लिखने में यार. वो हाईलाइट नहीं ना अभी दिखेगा, उसी ने मना किया मेरे को. बेंच पे बैठा है ना. ओके बोला ना. Hey, say yes, I can erase this. सर ऐसा किया, thumbs up दिया. Alright, write down types of functions. We did the definition of set, definition ordered pair, definition relation, definition function. After that, value of the function. Value of the function last time किया. Value of the function ऐसे पढ़ने में लगता है कि easy है, लेकिन इसमें बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. ये हम लोगों ने बोर्ड पे देखा. लास्ट टाइम भी एक आध क्वेश्चंस किए थे, जिसमें थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, जिसमें g of 100 हम लोग को निकालना था, लेकिन वहाँ भी हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन ही करना था. ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में जब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा जाता है. एंड नाउ वी आर कमिंग टू द क्लासिफिकेशन, नो नॉट क्लासिफिकेशन, types of functions. Write down the first one, polynomial function. Polynomial function. Fx is equal to f of x is equal to a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 up to n, where n is a non-negative integer. N is a non-negative integers, and a naught equal to 0 implies degree of polynomial function is equal to 1. Sorry, n.
अच्छा कोई x का ऐसा कोई वैल्यू है जहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बनता हो? डिसकंटिन्यूअस का मतलब कहीं इंफिनिटी बन जाता हो या इमेजिनरी आ जाता हो? n तो नेचुरल नंबर ही हुआ ना, नॉन नेगेटिव का मतलब कहीं भी फ्रैक्शन में जीरो, x तो डिनोमिनेटर में आएगा नहीं तो इंफिनिटी बनेगा नहीं, स्क्वायर रूट में किधर आएगा नहीं, तो इसको हमेशा कंटिन्यूअस रहना ही रहना है। ऐसे नीचे लिख दीजिए always a continuous function, polynomial function is always a continuous function। ध्यान दे दो, एक क्वेश्चन इधर में मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग के लिए कॉपी करने के लिए नहीं है ये। 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया डिग्री 3। ओके, इसमें मैं बोलता हूँ कि f ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी आएगा और f ऑफ माइनस इंफिनिटी आएगा। ध्यान दे दो, इंफिनिटी डालोगे तो डेफिनेटली इंफिनिटी आएगा ऐसा दिख रहा है, लेकिन माइनस इंफिनिटी डालेंगे तो ये माइनस इंफिनिटी बनेगा और ये इंफिनिटी बनेगा। किसी को कुछ पूछना है क्या? सर थोड़ा बड़ा, इससे बड़ा सर दिख नहीं रहा सर, थोड़ा बड़ा। विच ब्रांच? अपना ब्रांच। ओके ओके, थोड़ा उधर इन्फॉर्म करो ना लोग को यार, अभी गड़बड़ हुआ है। हाँ, तो f ऑफ माइनस इंफिनिटी इज माइनस इंफिनिटी। देखो यहाँ माइनस इंफिनिटी डाला और यहाँ माइनस इंफिनिटी डाला, तो तुम्हें नहीं लगता ये और यहाँ भी माइनस इंफिनिटी आ रहा है, तो मतलब 2 टाइम्स माइनस इंफिनिटी तो हंसने जैसा ही हो गया, माइनस इंफिनिटी होएगा। लेकिन इन दोनों को क्लब करोगे तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी बन रहा है ना। एक्चुअली इंफिनिटी कहीं भी प्रोजेक्ट कर नहीं सकते, एग्जैक्ट इंफिनिटी डाल नहीं सकते, एग्जैक्ट जीरो डिनोमिनेटर में अलाउड नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी डाल करके ये जो टर्म आ रही है ये कंफ्यूज कर रही है। देखो ध्यान दे दो, टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस टेंड्स टू इंफिनिटी इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। मैं प्रूव करूंगा बाय द टाइम, मतलब आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट इंफिनिटी कभी अलाउड नहीं है। तो मैं यहाँ पे भी कोशिश कर रहा हूँ टेंड्स टू इंफिनिटी ही लिखने के लिए, ये टेंड्स टू इंफिनिटी था और ये टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी था। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, x का हाईएस्ट पावर कॉमन निकालो इधर से, तो देखो तुम्हें रिजल्ट कितना मिल जाएगा, x क्यूब बाहर आ गया, ये बन गया 2 प्लस 5/x प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब। Now when you are putting x equal to infinity or minus infinity, in all the cases these terms are becoming 0. And just look at this, if you put infinity here this becomes infinity, if you put minus infinity here this becomes minus infinity, right? अब जरा सोचो कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं और पॉलिनोमियल फंक्शन में x क्यूब का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, x क्यूब का कोफिशिएंट, इसको a ले लेते हैं एक बार समझने के लिए, राइट? अगर a पॉजिटिव है तो f ऑफ माइनस इंफिनिटी आएगा, और अगर a नेगेटिव है तो ये प्लस इंफिनिटी आएगा। a नेगेटिव है, आ रहा है ना, देखो ये 0, ये 0, ये 0, a नेगेटिव, ये नेगेटिव इंफिनिटी, तो प्लस इंफिनिटी, राइट? No, here the degree of the polynomial is odd. इवन होगा तो इवन के लिए बात ही नहीं कर रहा, इवन के लिए तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, मैं ऑड के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? इस पर्टिकुलर स्टेप में किसी को डाउट है क्या कि f ऑफ माइनस इंफिनिटी दोनों में से एक होएगा, ये डिपेंड करेगा a पे, ठीक है? अब मुझे सोच के बताओ, अगर इसका कोई ग्राफ बनाए तो माइनस इंफिनिटी पे ये या तो प्लस इंफिनिटी होगा या माइनस इंफिनिटी होगा। मतलब इसका ग्राफ अगर मैं विजुअलाइज करूं तो कुछ इस तरह का होएगा कि इधर ये ग्राफ या तो इधर से स्टार्ट होएगा या इधर से स्टार्ट होएगा, ठीक है? और अगर इधर से स्टार्ट होएगा तो खत्म जो है वो इधर ही होएगा। जस्ट थिंक अबाउट इट, डाल के देखो ना उसी एक्सप्रेशन में, यू अंडरस्टैंड दिस? ए को एक बार सिर्फ पॉजिटिव लेके ही चलते हैं, मतलब ए को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में नहीं लेते हैं, तो ए को एक बार पॉजिटिव लेते हैं। अगर ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या हुआ भाई? माइनस इंफिनिटी इधर से स्टार्ट हुआ। अब पॉलिनोमियल्स कंटीन्यूअस होते हैं, ये तुम लोगों ने वेरीफाई किया ही है। एक ग्राफ इधर से स्टार्ट हुआ, ऑलराइट?
व्हाट इज एफ ऑफ इंफिनिटी? अगर x को इंफिनिटी डालूंगा तो इसको 2 ही ले लो समझने के लिए। नहीं ऊपर का जो लेटर है तो बताओ एफ ऑफ इंफिनिटी कितना हुआ? इंफिनिटी हुआ, यानी ये ग्राफ इधर से स्टार्ट हुआ और इधर तक जाएगा x की वैल्यू इंफिनिटी डालने पर, और बीच में डिसकंटिन्यूअस किधर भी नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स जो भी होंगे उनका ग्राफ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी y एक्सिस पर रहेगा। मतलब उसका जो रेंज रहेगा वो क्या रहेगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स रहेगा। कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल रहेगा उसका रेंज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी रहेगा। लेकिन अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल का बात करूंगा तो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट रहेगा, कभी भी रियल नंबर सेट नहीं आएगा। इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कभी भी, रेंज का मतलब y एक्सिस पर y का वैल्यूज, जब x का वैल्यू हम डाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शंस कभी भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी नहीं रहेगा। तो ये जो इतना लंबा रामायण किया है इसको कंक्लूड करते हैं और एक स्टेप में बात करते हैं। a नॉट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल n होएगा। अब इसके नीचे एक स्टार मार्क पॉइंट लिख दीजिए। फॉर एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल ये तो आप लोगों ने लिखा है ना, ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस। For an odd degree polynomial, the range is always minus infinity comma infinity. For an even degree polynomial, the range is subset of set of real numbers. आप चाहो तो इसको और स्ट्रेस दे सकते हो पॉइंट को, will never be R. सर एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी जीरो नहीं होगा, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कैसे रहेगा? क्यों एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करते हैं समय? अच्छा, किसी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट तो मिलेगा ही मिलेगा, पक्का गारंटी है। क्यूबिक इक्वेशन का नॉन रियल रूट्स हो गए। बोलना ओए हेलो, तुम लोग बहुत स्पेशल पढ़ते हो। तुम लोग क्या पढ़ते हो? कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स अगर रैशनल है तो इरैशनल रूट्स जो है वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, राइट? ये सब चीजें जो तुम पढ़ते हो ना, ये इसको स्टेट मत कर दो क्लास में, उससे सारे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो बोला जा रहा है उसी को कंफर्म करो। ये करेक्ट नहीं है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया तुम लोग को। यस प्लीज, नेहरू ब्रांच, कौन सा ब्रांच था? नेहरू वालों ने पूछा था ना भाई, ऑड डिग्री इक्वेशन का एक रूट तो होएगा ही नहीं यार, जीरो कैसे नहीं बनेगा? बनेगा ना, कुछ भी मत बोल। अच्छा सर ठीक है, हाँ चलो ठीक। अरे देख सुन, दो स्टेटमेंट्स को क्लब करते हैं। स्टेटमेंट 1, ऑड डिग्री, नॉट ऑड डिग्री, पॉलिनोमियल्स कंटिन्यूअस होते हैं, राइट? एक्सेप्टेड? सही है सर? नो? यस सर। ऑलराइट, अब माइक ऑन रखना अपना और सुनना ध्यान से। पॉलिनोमियल्स कंटिन्यूअस होते हैं। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स में जो रेंज होता है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है। अब पता है एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा या उड़ के चला जाएगा? ऑब्वियसली कट करके जाएगा। तुझे समझ में आ गया ना? उसका एक रूट मिलेगा ही मिलेगा, जीरो होएगा ही होएगा, राइट? Go for the second function, algebraic function.
हाँ, I can hear you. Please ask your question. Sir, you said polynomial functions are continuous, sir. How can you verify that? अच्छा, कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है? हाउ विल यू वेरीफाई दैट? जब वो या तो इमेजिनरी, सुन ना, x की किसी वैल्यू के लिए या तो वो अंडर रूट में आयटा जैसा कुछ आ जाए, मतलब इमेजिनरी हो जाए, या फिर डिनोमिनेटर 0 बन जाए, या फिर साइन इनवर्स में 2 से बड़ी 1 से बड़ी कोई वैल्यू आ जाए, लाइक दिस y इक्वल टू साइन इनवर्स x में x को 2 डाल दिया तो ये डिसकंटिन्यूअस हो ही जाएगा। ऐसी तो बात करते हैं। अब तू जब ये इक्वेशन लिख रहा है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, x का कोई वैल्यू बता जिसके लिए ये इन्फिनिटी बन जाए या आयटा के टर्म्स में कुछ आ जाए, रियल वैल्यू नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, हाँ सर, नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा। ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस। राइट डाउन एल्जेब्रिक फंक्शंस। पता है एल्जेब्रिक फंक्शंस क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल को, ध्यान दे दो, किसी भी पॉलिनोमियल में कोई भी ऑपरेशन तुम यूटिलाइज करो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट, टेकिंग द रेडिकल साइन कैन बी एनी काइंड ऑफ रेडिकल साइन, the resulting function we get an algebraic function, like under root x square plus 1 is an algebraic function, x upon under root x cube plus 3 is an algebraic function. Definition लिख लेते हैं, write down algebraic function, function constructed using algebraic operations algebraic operations such as addition, subtraction, multiplication, division, taking square root, started with polynomial. I mean, whatever operation you are utilizing, it should be utilized on polynomial. सही बार वापस रिपीट कीजिए। I'll repeat. It can be constructed using algebraic function, means can be constructed using algebraic operation से add कर दो, subtract कर दो, multiply कर दो, divide कर दो, square root ले लो। स्टार्टिंग विद पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? मतलब जो लास्ट वर्ड बोला उसका मतलब क्या है समझ लो। स्टार्टेड विद पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि आप क्या कर लो, एक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब लो, एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 लो, और एक तीसरा पॉलिनोमियल कुछ ले लो एक्स। तीनों ही पॉलिनोमियल है ना। फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल पे पावर 3/2 डाल दो, तो दूसरे वाले पॉलिनोमियल पे पावर 1/2 डाल दो, तीसरा वाला पॉलिनोमियल एज इट इज रहने दो, राइट। ये तीन जो टर्म्स बन गई है, इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी कर दो, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी एन एल्जेब्रिक फंक्शन। अब तुम लोग बोलोगे ऐसे तो सर सारे फंक्शन एल्जेब्रिक ही हो गए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें पॉलिनोमियल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें पॉलिनोमियल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो एक चीज समझ लो, पॉलिनोमियल के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसमें x का हाईएस्ट पावर, मैंने इधर से खत्म किया है, x का हाईएस्ट पावर डिफाइंड हो। जैसे तुम ये वाला चीज लिखोगे ना, 1 + x स्क्वायर अप टू x टू द पावर n और अप टू सो ऑन, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए हाईएस्ट पावर डिफाइन होना जरूरी है, राइट। इसका एग्जांपल लिख लो, उससे ज्यादा क्लियर होएगा। दिस इज 1, दिस इज x अपॉन अंडर रूट x क्यूब प्लस 2। अभी 10 मिनट लेक्चर और चलेगा कम से कम, सुन लो ध्यान से। अंडर रूट x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। एक ये भी हो सकता है x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 एंड सो ऑन। सुन ना, 2 मिनट रुकना, तेरे कॉमन है क्वेश्चन बच्चों को। These are all algebraic functions.
So, wait, 2 मिनट के लिए वेट। सारे लोग, किसी का भी क्वेरी है ना, 2 मिनट वेट कर लो, उसके बाद लेते हैं। 2 डेफिनेशन और लिखाऊंगा तो आधी क्वेरीज उसी में क्लियर हो जाएंगी, फिर जो बचेंगे उसको डिस्कस कर देंगे। सबसे पहला डेफिनेशन था पॉलिनोमियल्स का, सेकंड हो गया एल्जेब्रिक फंक्शंस का, और थर्ड हो गया रैशनल फंक्शंस। P of x upon Q of x is called a rational function if Px and Qx are polynomials. If Px and Qx are polynomials. लाइन चेंज करके लिख दो, all rational functions are algebraic functions. All rational functions are algebraic functions. Wait, तो polynomial तो obvious हो गया ना. All rational functions are algebraic functions, but vice versa may not be true. एक और डेफिनेशन के बाद मैं क्वेरीज लूंगा। नेक्स्ट नंबर 4, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन functions which are not algebraic are known as functions which are not algebraic are known as transcendental functions. इसका मतलब तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गए? यस, रॉन्ग भी नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन और सिंगल चॉइस है, तो प्रेफरेंस गोज टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं आता यार, कभी नहीं आता, लेकिन अभी क्या है, तुम लोग पूछोगे इससे पहले मैं ही बता दूं ना। e to the power x ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, x into e to the power x, x into e to the power x ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, x plus 1 upon sin x transcendental function, sin x square plus cos cube x plus under root x transcendental function, etc. ये फंक्शन को आप एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं बोल सकते। लेकिन एक बात समझ लो आप, अच्छा गड़बड़ कहाँ होगी उसको भी तो ध्यान दो, मैं इतनी देर से बात ही नहीं कर पा रहा इस बारे में। ट्रांसेंडेंटल के फंक्शन में गड़बड़ किधर होती है, इसकी डेफिनेशन में फिर जाते हैं। Functions which are not algebraic are transcendental function. अब होएगा क्या, जैसे जैसे तुम्हारे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे ना, तो नए नए फंक्शंस तुम पढ़ोगे जिनकी कैलकुलेशन, मतलब जिनका मैनिपुलेशन आपको एक स्मॉलर टर्म देता है। फॉर एग्जांपल sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 9x up to so on, ये एक सिंगल टर्म बनता है फाइनली, राइट? तो आपको ये पता है कि यार ये एक सिंगल टर्म बनता है, अगर कुछ सब्ट्रैक्शन में भी होएगा तो वो सिंगल टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। जरा सोचो कि एक ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज दिया जाए, sin x plus sin 3x up to so on, राइट? और यहाँ पे माइनस साइन ऑफ समथिंग मैंने लिखा और प्लस अंडर रूट x लिखा। राइट नाउ दिस इज अ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, क्योंकि मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन ऐड कर दिया गया यहाँ पे। लेकिन जरा ध्यान दे दो, कहीं ऐसा तो नहीं है
इसका जो कैलकुलेशन बन रहा है वो जीरो ही बन रहा है. Do you understand my point? ऐसा बहुत बार हो सकता है. In that case, this will become an algebraic function. IIT JEE में डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऐसा गारंटी नहीं कर सकते ना आप. भाई आपको डेफिनेशन आती है ये बात ठीक है, लेकिन अप्लाई करना आता है कि नहीं आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. आपको अगर इसका सीरीज समेशन नहीं आता है तो आप इसका आंसर रॉन्ग लिख के आने वाला हो, ये गारंटी है. Is there anyone having doubt? Now you can ask me one by one. Sir, Can you give an example where a function is algebraic but not rational? algebraic but not transcendental. Algebraic but not rational. Algebraic but not rational. Same example. This is algebraic but not rational. रैशनल के लिए न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल होना चाहिए. अंडर रूट एक्स इज नॉट अ पॉलिनोमियल. हाँ, जो क्वेरी आती पूछना चाहिए ना, क्वेश्चन तो है ही, इसमें क्या है. और किसी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन रहेगा. sin x ट्रांसेंडेंटल भी रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक भी रहेगा. पर ट्रांसेंडेंटल को भी अपन ने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो फिर sin square x plus cos x की एक तो वो ट्रांसेंडेंटल नहीं हुआ ना. sin square x sin square x plus cos square x is an algebraic function, is a polynomial. Why are you asking? When you know the answer, you should not ask. Sin square x plus sin square x plus cos square x is coming out to be 1. See, after calculating the terms only, what final answer are you getting? Why don't you write 12 by 14 as a rational number? It is a rational number, no doubt about it. But you always write it in its lowest form. Lowest form जैसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वैसे ही पूरा मैथमेटिक्स में lowest form का मतलब होता है after manipulating what function you are getting will give you the definition of function. Have you understood this? Nerul branch. Yes sir. Yes sir. One more last function. हाँ. इसमें एक मिनट रुको. इसे स्क्वायर रूट से या क्यूब रूट, फोर्थ रूट, मैंने बोला ना कोई भी रूट चलेगा. 5/7 भी चलेगा. Like that.